Good morning, students. So, in our last class, we have read the poem Chibi. So now I am going to share the exercises with you of Chibi. As you can see that the first question is discuss these questions in small groups before you answer them. When is a grown up likely to say this? Don't talk with your mouth full. You can write a grown up is likely to say this when the child speaks with food in his or her mouth. The second one is when are you likely to be told this? Say thank you. You can write when the child receives or asks something from somebody, he or she is supposed to say thank you. When do you think an adult would say this? No one thinks you are funny. You can write an adult will say this when the child interrupts someone. Now the second question is the last two lines of the poem are not prohibitions or instructions. What is the adult now asking the child to do? Do you think the poet is suggesting that this is unreasonable? Why? In the last two lines of the poem, the adult is asking the child to take decisions on his own. The poet is suggesting that the adults should not continuously force children to do something because it is not reasonable. If adults continue pestering children, they will not get an opportunity to learn how to behave in life. ये आप लिख सकते हो. The third question is, why do you think grown-ups say the kind of things mentioned in the poem? Is it important that they teach children good manners and how to behave in public? Grown-ups say such things to children because they wish that children should be well behaved and well cultured. Yes, it is very much important that they must teach their children good manners and how to behave in public, since children need proper guidance and instructions to become good citizens of a nation, but it should be done without constantly nagging them. Instructions, proper guidance. गाइडेंस का स्पेलिंग थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, GUIDANCE, ENCE की जगह ANCE लिखना सेकेंड लाइन में, और मतलब नीचे से सेकेंड लाइन में. और द मीनिंग ऑफ नैगिंग मीन्स कंटिन्यूसली इंटरप्टिंग. ठीक है. द फोर्थ क्वेश्चन इज इफ यू हैड टू मेक सम रूल्स फॉर ग्रोन अप्स टू फॉलो, what would you say? Make at least 5 such rules. Arrange the lines as in a poem. अगर आप बड़ों के लिए कुछ रूल बनाना चाहो तो क्या बना सकते हो? तो आप लिख सकते हो some rules for grown-ups to follow. Don't scold the children all the time. Don't say do this and not that all the time. Don't teach them too much. Speak softly to them all the time. Be helpful to them all the time. It will improve their manners. तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो दो आई एम ए ग्रोन अप और ये पोएम कहीं ना कहीं हम सभी के लिए, हम सभी ग्रोन अप्स के लिए एप्लीकेबल होती है आप बच्चों की तरफ से. तो मैं इस बात को मानता हूँ, दो इट इज़ टफ, रियली लिटिल बिट, नॉट रियली टफ बट अ लिटिल बिट टफ, थोड़ी बहुत टफ है ग्रोन अप्स के लिए. ये जो पोएम में लिखा हुआ ये फॉलो करना हमें पूरी तरह से, थोड़ी बहुत टफ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे अगर गलती करते हैं तो हम अपने आप ही हमारी मुंह से डांट निकल जाती है, और अगर बच्चे कुछ अपना नुकसान करते हैं तो हम उनको रोकते भी हैं. हम बच्चों को सही चीज़ सिखाने की कोशिश भी करते हैं. कभी कभी बच्चे अगर हमसे जबान लड़ाने लग जाए तो हम समटाइम्स यू कैन से दैट रूड भी हो जाते हैं. बच्चे अगर बार बार किसी चीज़ को लेकर के परेशान करें तो कभी कभार हम, ऑब्वियसली हेल्पफुल तो हम हमेशा रहते हैं, लेकिन कभी कभार हम लोग बच्चों को डांट भी देते हैं. तो ये चीज़ें हैं, कुछ गलतियां हैं जो बड़े भी कहीं ना कहीं करते हैं, और इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि बच्चों के ऊपर अगर रूल्स अप्लाई है, एप्लीकेबल है, तो बड़ों के ऊपर भी है. सो दिस आर द गुड रूल्स विच शुड बी फॉलोड बाय द ग्रोन अप्स. बच्चों को ज़्यादा डांटना नहीं चाहिए, सही है. बच्चों को हर वक्त ये समझाना नहीं चाहिए कि ये मत करो वो करो, ठीक है. बच्चों को बहुत ज़्यादा नहीं सिखाना चाहिए, थोड़ा बहुत
उनके खुद के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ऑब्वियसली हमें करना चाहिए ऐसा। बच्चों से प्यार से बात करनी चाहिए। हाँ, हम लोग कभी कभी रूड हो जाते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन ये हमें इतना तो पेशेंस कल्टीवेट करना ही होगा कि हम बच्चों के प्रति सॉफ्ट रहें। शायद ये लाइन बहुत ज़रूरी है, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि सॉफ्ट नहीं रहेंगे तो बच्चे हमसे रूडिटी सीखेंगे, और रूडिटी सीखेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी जाने अनजाने, एक्चुअली बच्चे वही सीखते हैं जो हम करते हैं। मीन्स हम जो बोलते हैं वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वी डू एक्चुअली, जो हम करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हमें ऑब्वियसली अपने अंदर पेशेंस कल्टीवेट करना पड़ता है ताकि हम बच्चों को एक बेस्ट एग्जाम्पल दे सकें। ऑब्वियसली मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बच्चों से सॉफ्टली बोलना चाहिए। रेयर एक्सेप्शन की बात कर दो, छोड़ दो, कभी महीने में एक बार डांट दी वो अलग बात। हेल्पफुल तो बच्चों के लिए होना ही पड़ेगा बड़ों को, क्योंकि अगर बड़े ही हेल्पफुल नहीं होंगे तो बच्चे सीखेंगे किससे और कैसे। सहमत हूँ इन पूरी बातों से, इस पूरी पोएम से मैं। तो ये आप 4 का आंसर लिख सकते हो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू पोएम, नॉट पोएम, chapter, which is quality. And student, this chapter is basically written in Germany by John Galsworthy. जर्मन भाषा में क्वालिटी, गुणवत्ता, ये चैप्टर लिखा गया है और ऑब्वियसली इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। देखो, इस चैप्टर में एक ऐसे व्यक्ति की कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मन लगा के अपना काम करता है। मीन्स वो जो भी करता है उसमें पूरी तरह से वो डूब जाता है। इस व्यक्ति का नाम है मिस्टर जेस्लर, और ये बहुत अच्छा शू मेकर है। ये जूते बहुत कमाल के बनाते हैं, ठीक है, और जूते बनाने की जो प्रोसेस है उसमें वो पूरी तरह से डूब जाते हैं जब भी वो उस प्रोसेस पर काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है तो एक ऐसे ही महान शू मेकर के बारे में हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इससे हमें न जाने कितना कुछ सीखने को मिलने वाला है। कैन ए शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? यस, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist, and the same respect for it too. Mr. Gessler, a German shoemaker settled in London, is a perfect artist. Read this story to see how he devotes his life to his art. तो स्टूडेंट्स, एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है मिस्टर गेस्लर। ये वैसे तो जर्मनी में इनका जन्म हुआ है, लेकिन ये लंदन, इंग्लैंड में जाकर के रहने लगे हैं, वहाँ बस गए हैं। इन्हें आर्टिस्ट का दर्जा दिया गया है, एक कलाकार का दर्जा दिया गया है। क्यों? राइटर जॉन गैल्सवर्दी के द्वारा इन्हें एक आर्टिस्ट यानी कलाकार का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि ये अपने जूते बनाने का जो काम है, हालांकि कईयों की नज़र में ये बहुत छोटा काम हो सकता है, मोची का काम, छोटा काम, लेकिन यकीन मानो अगर मोची भी अपने काम को मन लगा के और पूरी गर्व के साथ करे कि हाँ, मुझे अपने काम करने में गर्व है, तो ये एक बहुत ही महान बात होगी। तो मिस्टर गेस्लर जो है वो इतना मन लगा करके अपना काम करते हैं कि इतना मन लगा के वो अपना काम करते हैं कि राइटर ने उन्हें एक आर्टिस्ट का नाम दे दिया। चलो इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से अपने काम में आदमी को गर्व होना चाहिए। जिस आदमी को अपने काम में गर्व नहीं है, जो आदमी खुद अपने काम को छोटी नज़रों से देखता है, उस आदमी का क्या सम्मान होगा अपनी ही नज़रों में, उसका क्या आत्मसम्मान होगा। और जिसका आत्मसम्मान ही नहीं है उसको कोई दूसरा क्या सम्मान देगा। दूसरों से सम्मान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपनी नज़रों में सम्मान होना ज़रूरी है, और यह तभी संभव है जब हम लोग अपने काम को पूरे गर्व और ईमानदारी से करें। पढ़ते हैं क्या होता है इस कहानी में। I knew him from days of my extreme youth because he made my father's goods. He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. The shop had a certain quiet distinction.
There was no sign upon it other than the name of Gessler Brothers, and in the window a few pairs of boots. He made only what was ordered, and what he made never failed to fit. He made boots. Such boots as he made seemed to me then, and still seems to me, mysterious and wonderful. I remember well my shy remarks one day while stretching out to him my youthful foot. Is not it awfully hard to do, Mr. Gessler? And his answer, even with a sudden smile from out of the redness of his beard, it is an art. It was not possible to go to him very often. His boots lasted terribly, having something beyond the temporary, some essence of boots stitched into them. यहां तक समझते हैं. राइटर का कहना है, राइटर कौन है? राइटर है जॉन गैल्सवर्दी. जॉन गैल्सवर्दी का कहना है कि बचपन से ही वो मिस्टर गेस्लर की दुकान में जाते हैं. मिस्टर गेस्लर जो एक मोची हैं, अपने हाथों से जूते वो सिलते हैं, बनाते हैं. उनकी दुकान लंदन के एक फैशनेबल रास्ते पर एक किनारे में है. एक छोटी सी गली में उनकी दुकान है, जो गली किसी फैशनेबल रास्ते से निकलती है. लंदन की जो है तड़क भड़क वाली दुकानों के बीच उनकी एक छोटी सी दुकान है, जिस पर किसी भी प्रकार का आडंबर या किसी भी प्रकार की जिसके ऊपर किसी भी प्रकार की तड़क भड़क या जो है चमक नहीं है. सिंपल सा एक बोर्ड लगा है उनके दुकान के बाहर जिसमें लिखा है गेस्लर ब्रदर्स. गेस्लर ब्रदर्स लिखा हुआ है और खिड़कियों में कुछ एक पेयर, ये कोई 4-5 पेयर जूतों के रखे हुए हैं. वो जूते तभी बनाते हैं जब उनको कोई जूते बनाने के लिए कहता है, अदरवाइज वो जूते नहीं बनाते. मतलब जब जैसे जैसे कस्टमर आते हैं, जैसे जैसे कस्टमर उनको डिमांड करते हैं, वैसे ही वो जूते बनाते हैं. ऐसे कमाल के वो जूते बनाते हैं कि वैसे जूते देखने को नहीं मिलते. अपने बड़े भाई के साथ वो उस दुकान में उस दुकान के अंदर में ही एक रूम बना हुआ है, वहाँ पर वो रहते हैं दोनों भाई. राइटर को अपने बचपन की कोई बात याद आती है कि एक दिन जब वो मिस्टर गेस्लर के पास गए थे तो उन्होंने पूछा था कि मिस्टर गेस्लर, आप ये जो काम करते हो, आपको ये काम कठिन नहीं लगता? तो मिस्टर गेस्लर ने अपनी लाल दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोला था, ये एक कला है, ये एक कला है. मैं अपने काम को कला मानता हूँ और मैं इसमें अपना सब कुछ झोंक देना चाहता हूँ. सच था, ये कला ही तो थी, क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए जूते लंबे समय तक टिकते थे, लंबे समय तक. One went in, not as into most shops, but restfully as one enters a church, and sitting on a single wooden chair waited. A guttered sound, and the tip-tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in leather apron and sleeves turned back, blinking, as if awakened from some dream of boots. And I would say, how do you do, Mr. Gessler? Could you make me a pair of Russian leather boots? Without a word he would leave me retiring whence he came, or into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his trade. क्या होता है देखो स्टूडेंट्स, जब जब भी वो उनके दुकान में गए होंगे बचपन से लेकर के जवानी तक, तो अंदर जाकर के जैसे जैसे जब जब भी उन्होंने दुकान विजिट की और जब जब भी वो जाकर के अंदर में किसी डाली हुई चेयर पर बैठे होंगे, तो उन्हें हमेशा मिस्टर गेस्लर के द्वारा जो रबड़ की चप्पल पहनी हुई होती है, स्लीपर्स, उनकी टिप टाप आवाज़ सुनाई देती है, जो कि वुडन स्टेयर से नीचे आते वक्त वो करते हैं. मतलब उनकी दुकान में एक वुडन स्टेयर है और ऊपर में भी एक शायद कोई रूम बना हुआ है जहाँ वो लोग आराम करते होंगे. तो वुडन स्टेयर से जैसे जैसे वो नीचे आते होंगे, तब उनके चप्पल मीन्स साधारण
एकदम साधारण ढंग से वो रहते हैं, चप्पल पहनते हैं, रबड़ की चप्पल पहनते हैं और एक थोड़े से झुक करके चलते हैं और एक चमड़े का एप्रॉन, मतलब जो है चेस्ट की तरफ डाला हुआ एक ओवरकोट वो पहनते हैं। अपने हाथों में जो शर्ट के स्लीव्स है उनको वो मोड़ करके रखते हैं और जब भी वो बनाने के लिए बैठते हैं जूते, तो बस उसमें खो जाते हैं। और अक्सर राइटर उनको बोला करते थे, मिस्टर गेस्लर आप कैसे हो, क्या आप मुझे रशियन लेदर के बूट्स बना के दे सकते हो। स्टूडेंट्स, रशियन लेदर, रशिया में पाया जाने वाला जो लेदर है वो वर्ल्ड में माना जाता है बहुत कमाल का लेदर होता है और बहुत लंबा और टिकाऊ होता है। बस मिस्टर गेस्लर को ये बोलने की देरी थी कि मुझे रशियन लेदर की बूट्स बना दो। बिना कोई शब्द कहे वो चले जाते थे और उसके बाद रशियन लेदर लाते थे। Soon he would come back, holding in his hand a piece of gold brown leather. With eyes fixed on it, would remark, and he would, what a beautiful piece. यहाँ पर आप जो वर्ड्स देख रहे हो स्टूडेंट्स, कोई कोई वर्ड आपको ऐसा मिलेगा जो थोड़ा सा, जिसकी स्पेलिंग थोड़ी सी अलग रहेगी। जैसे बी जो है रशिया मीन्स जर्मन में, वो इंग्लिश में पी लिखा जाता है उस तरह से। जैसे बी इसका मतलब पीस, कुछ वर्ड अलग मिलेंगे, वो हमें जो है हर डी को हम लोग टी समझेंगे और हर बी को हम लोग पी समझेंगे, तो हमारी ऑलमोस्ट जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बी को पी समझना है और डी को टी समझना है। थोड़ी देर बाद ही वो वापस आते हैं और दिखाते हैं कि देखो ये कितना कमाल का सुनहरा और भूरे रंग का ये चमड़ा है, बहुत खूबसूरत चमड़ा है ये। राइटर भी उसकी तारीफ करते हैं। फिर वो आगे बोलना शुरू करते हैं, आपको ये जूते कब चाहिए, व्हेन डू यू वांट देम। राइटर बोलते हैं ओह जितना जल्दी आपसे हो सके, आराम से। और वो बोलते हैं टुमारो, फोर्टनाइट, 15 दिनों के अंदर। और इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर। अगर वो उनके बड़े भाई रहते मिस्टर गेस्लर के, तो अक्सर वो गेस्लर का नाम लेते कि मैं गेस्लर से पूछ के बताऊंगा। और अगर वो छोटे भाई रहते तो वो अक्सर 15 दिन के बाद के समय, 15 दिन का समय मांगते। Then I would murmur, thank you, good morning, Mr. Gessler. Good morning, he would reply, still looking at the leather in his hand. And as I moved to the door, I would hear the tip-tap of his slippers going up the stairs to his dream of boots. और जैसे ही मैं ऑर्डर देके चला जाता कि हाँ इसका मुझे बना दो, तो वो जो है कमाल का जूता बनाने के लिए स्टेयर्स में चढ़ने लग जाते और अपने जूते बनाने की दुनिया में खो जाया करते थे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। हम लोगों ने जो है आज क्या किया, हम लोगों ने चीवी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए। यू नीड टू राइट दोज क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक, देयर इज नो नीड टू राइट द वर्ड मीनिंग्स ऑफ द पोएम। और हमने एक नया चैप्टर शुरू किया, चैप्टर 5 क्वालिटी। आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में इस चैप्टर में आगे क्या होता है। वैसे ये जान लो कि इस चैप्टर में हम लोग रियलिटी ऑफ लाइफ भी देखेंगे, जीवन की कड़वी सच्चाई। हर एक जो महान आदमी होता है उसका जीवन उतना सहज भी नहीं होता, लेकिन उसको तो महानता से मतलब होती है। वो तो अपने काम में खोया रहता है। और काम में खोए हुए आदमी को हमें दिल से सलाम करना चाहिए। जो आदमी अपने काम में खोया रहता है, जो आदमी दिल से अपने काम को पूजा समझता है, वो आदमी सम्मान, हर तरह से सम्मान के योग्य है। तो इस तरह से हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि मिस्टर गेस्लर के साथ क्या होता है, मिस्टर गेस्लर आगे क्या करते हैं। यकीनन आगे पढ़ना दिलचस्प होगा और बहुत कुछ नई चीज़ें हमें इस मिस्टर गेस्लर से रिलेटेड आगे बहुत कुछ अलग अलग बातें हमें जानने को मिलेगी।
और देखते हैं ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है, कैसे इसका एंड होता है। बहुत कुछ सिखा के जाने वाली है ये कहानी हमें, तो आप उसके लिए तैयार रहें और अच्छी भी क्वेश्चन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कर लें आप। आज का वीडियो मैं थोड़ा यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। ओके, सो आई होप यू आर फाइन, स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू very much.